ایک دفعہ کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بوڑھا راجا تھا جو کہ بہت ایماندار اور انصاف پسند تھا۔ راجا کے دو بیٹے تھے۔ راجا کے بڑے بیٹے کا نام امرو تھا اور وہ ہمیشہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتا، اور راجا کے دوسرے بیٹے کا نام بمرو تھا جو کہ امرو سے صرف 2 سال ہی چھوٹا تھا، اور بمرو ہمیشہ کالے رنگ کے کپڑے پہنتا۔ کیونکہ راجا اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا تو ایک دن وہ اپنے وزیر سے بولتا ہے کہ دیکھو وزیر، اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، روز دن میں بیمار ہو جاتا ہوں اور اب تو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہی وقت ہے کہ مجھے اپنی راج گدی اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کے حوالے کر دینی چاہیے۔ جی راجا صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب ہمارے ملک کو ایک نئے نوجوان راجا کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ اپنی راج گدی اپنے 2 بیٹوں میں سے کس ایک کے حوالے کریں گے؟ وزیر، میں اپنی راج گدی اپنے بیٹوں میں سے اس کے حوالے کروں گا جو کہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ ایماندار ہوگا اور امیر غریب میں فرق نہیں کرے گا، تاکہ میرے جانے کے بعد میری جنتا کو ہمیشہ انصاف ملتا رہے اور ان کو کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ بھی ٹھیک ہے راجا صاحب، لیکن آپ کے دونوں بیٹوں میں سے کون سا بیٹا زیادہ سمجھدار ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں بھی میں نے سوچ رکھا ہے۔ ایسا کرو وزیر کہ تم جا کر میرے دونوں بیٹوں کو میرے سامنے حاضر ہونے کا بول دو۔ ٹھیک ہے راجا صاحب، جیسا آپ بولیں۔ راجا کے اس حکم کے بعد وزیر دونوں شہزادوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں راجا کے سامنے حاضر ہونے کا کہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی دونوں شہزادے راجا کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جی راجا صاحب، کیا آپ نے ہمیں بلایا؟ ہاں میرے بچوں، میں نے ہی تم دونوں کو بلایا ہے۔ راجا جی، ایسے اچانک سے آپ نے ہمیں یہاں بلایا، سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں میرے بچوں، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ جیسا کہ تم دونوں کو پتہ ہے کہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی لیے میں اکیلے اس پورے راجیہ کو نہیں سنبھال سکتا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میری کچھ ذمہ داریاں اٹھانے میں تم دونوں بھی میری مدد کرو۔ راجا صاحب، اوپر والا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ حکم کریں، جیسا آپ بولیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ ہاں راجا صاحب، بڑے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسا آپ بولیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے میرے شہزادوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میرے ملک کی آدھی جنتا کے مسئلوں کا فیصلہ شہزادہ امرو کرے گا اور آدھی جنتا کے مسئلوں کا فیصلہ شہزادہ بمرو کرے گا، اور امید کرتا ہوں کہ تم دونوں میری جنتا کے ساتھ انصاف کرو گے اور ہمیشہ سمجھداری سے کام لو گے۔ ٹھیک ہے راجا صاحب، جیسا آپ کہیں۔ راجا کا یہ حکم سننے کے بعد دونوں شہزادے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ راجا صاحب، گستاخی معاف، لیکن میں سمجھا تھا کہ آپ آج ہی اپنی راج گدی اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کے حوالے کر دیں گے۔ ارے نہیں وزیر، میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی راج گدی اپنے سمجھدار اور ایماندار بیٹے کے نام کروں گا، جس کے لیے میں اپنے دونوں بیٹوں کا ایک امتحان لے رہا ہوں۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا میں اپنی راج گدی اسی کے حوالے کروں گا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ ہاں وزیر، بس 1 مہینہ انتظار کرو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے بعد میری راج گدی میرے کس بیٹے کو ملے گی۔ اس سب میں 1 مہینہ گزر جاتا ہے اور راجا وزیر کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ وزیر، میرے بیٹوں کو اپنی اپنی ذمہ داری اٹھائے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب ان کے نتیجے کا وقت آ گیا ہے۔ بس اب تم ایسا کرو کہ اپنا بھیس بدل کر جاؤ اور دیکھو کہ میرے بیٹوں میں سے کون سمجھداری کے ساتھ اپنی جنتا کا انصاف کرتا ہے اور ان کے مسئلے حل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے راجا صاحب، جیسا آپ کہیں۔ راجا کا یہ حکم سننے کے بعد وزیر اپنا بھیس بدل لیتا ہے اور ایک بیوپاری کا بھیس اوڑھ کر اپنے گھوڑے پر سوار شہزادے بمرو کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک سونار اور ایک غریب لڑکا آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو وزیر ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، ارے کیا ہوا، تم دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ ارے کیا کہوں صاحب،
इस गरीब लड़के ने मेरी दुकान से ये जेवर चुराया है और अब ये झूठ बोल रहा है कि ये जेवर इसका है। नहीं साहब, असल में ये जेवर मेरी माँ का है और हम पर बहुत उदार है, इसीलिए मेरी माँ ने कहा कि तुम ये जेवर ले जाकर किसी सुनार पर बेच आओ। तो मैं ये जेवर बेचने के लिए इसकी दुकान पर आया और इसने मेरे पास ये जेवर देखते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा कि ये जेवर मेरा है, तुमने इसे मुझसे चोरी किया है। इतने में वजीर उनसे बोलता है, देखो तुम दोनों लड़ो मत, ऐसा करते हैं हम शहजादे बमरू के पास जाते हैं, वो ही तुम्हारा फैसला करेंगे कि ये जेवर तुम दोनों में से किसके हैं। वजीर की ये बात सुनकर सुनार और गरीब लड़का दोनों मान जाते हैं और वो वजीर के साथ शहजादे बमरू के दरबार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन शहजादा बमरू वहां नहीं होता। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद शहजादा बमरू वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं, बताओ तुम लोगों का क्या मसला है। शहजादे बमरू, इस गरीब लड़के ने मेरी दुकान से ये जेवर चुराए हैं और अब ये मुझे वापस नहीं लौटा रहा। नहीं शहजादे बमरू, मैं कोई चोर नहीं, ये जेवर मेरी माँ का है और मैं इसे इस सुनार की दुकान पर बेचने के लिए लाया था। ये सुनार बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे आखिरकार एक गरीब लड़के के पास सोने के जेवर कहाँ से आ गए, और सुनार को तो सुनार बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि वो काम ही सारा जेवरों का करता है। इसीलिए मैं फैसला करता हूँ कि ये गरीब लड़का चोर है। सिपाहियों, इस लड़के को काल कोठरी में डाल दो और सुनार तुम अपना जेवर लेकर यहाँ से चले जाओ। शहजादा बमरू वजीर को दूसरे भेष में नहीं पहचान पाता और वजीर शहजादे बमरू के इस बेवकूफ़ी भरे फैसले को सुनकर हैरान होता है कि कैसे शहजादा बमरू ने बिना सोचे समझे ही एक गरीब लड़के को काल कोठरी में फेंकवा दिया। ये सब देखने के बाद वजीर वहाँ से शहजादे अमरू की तरफ रवाना हो जाता है। तो इतने में रास्ते में एक बूढ़ा आदमी अचानक से वजीर के घोड़े के आगे आ खड़ा होता है। कौन हो तुम और ऐसे अचानक से मेरे घोड़े के आगे आकर क्यों खड़े हो गए? अरे साहब, मैं एक बूढ़ा और कमज़ोर आदमी हूँ, क्या आप मुझे अपने घोड़े पर बाजार तक ले जा सकते हो? ठीक है बूढ़े आदमी, मैं वैसे भी बाजार के रास्ते ही गुजरूंगा। ऐसा करो तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी वहाँ छोड़ दूंगा। इस सब के बाद वजीर और बूढ़ा आदमी दोनों घोड़े पर सवार बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं और जैसे ही वो बाजार पहुँचते हैं और घोड़े से उतरते हैं तो ठीक है बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हें बाजार पहुँचा दिया है, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलता हूँ, मेरा घोड़ा तो मुझे वापस करो। कैसा घोड़ा? ये घोड़ा तो मेरा है। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, ये घोड़ा मेरा है, मैं बूढ़ा हूँ इसीलिए तुम मुझसे मेरा ये घोड़ा छीनना चाहते हो। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर आसपास की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब बूढ़े आदमी का बुढ़ापा देखकर वजीर को ही चोर समझ रहे होते हैं। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम दोनों शहजादे अमरू के पास चलते हैं, वो ही हमारा फैसला करेंगे। बूढ़ा भी वजीर की ये बात मान लेता है और दोनों घोड़े पर सवार शहजादे अमरू की तरफ रवाना हो जाते हैं। इतने में रास्ते में उनकी नज़र एक घी वाले पर पड़ती है जो कि किसी से लड़ रहा होता है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? साहब, ये आदमी मेरे पास घी लेने आया था, मैं जैसे ही इसके लिए घी निकालने को मुड़ा तो इसने अचानक से मेरे गले में हाथ डाल दिया और मेरे गले से सारे सिक्के निकाल लिए, लेकिन मेरी इस पर नज़र पड़ गई और मैंने इसे उसी वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये मुझे मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर रहा है और बोल रहा है कि ये सिक्के मेरे हैं। नहीं साहब, बात यह है कि मैंने इससे घी मांगा और जैसे ही मैंने अपनी जेब से इसे पैसे देने के लिए ये सिक्के निकाले तो इसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा कि ये सिक्के मेरे हैं। देखो, तुम दोनों आपस में ना लड़ो, हम भी अपने फैसले के लिए शहजादे अमरू के पास जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, वो तुम्हारा भी फैसला कर देंगे। ये बोलकर वो भी वजीर के साथ शहजादे अमरू की तरफ रवाना हो जाते हैं।
इतने में रास्ते में वो देखते हैं कि दो आदमी एक लड़की के सर पे एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो, और ये लड़की कौन है? साहब, मैं एक लिखारी हूँ और ये लड़की मेरी गुलाम है जिसे कि ये आदमी मुझसे छीन रहा है। नहीं साहब, मैं एक चरवाहा हूँ और ये लड़की मेरी गुलाम है जिसे कि ये मुझसे छीन रहा है। वजीर इन दोनों को भी अपने साथ शहजादे अमरू के पास जाने को बोलता है, जिसके बाद ये सब मिलकर शहजादे अमरू के दरबार में पहुंच जाते हैं और सब बारी बारी शहजादे अमरू के सामने अपना अपना मसला बताते हैं। सबसे पहले घी वाला शहजादे अमरू के सामने हाजिर होता है। बताओ, तुम दोनों का क्या मसला है? शहजादे अमरू, इस आदमी ने मेरी दुकान के गल्ले से ये सिक्के चुराए हैं और मैंने इसे पकड़ लिया। अब ये मेरे सिक्के देने से इनकार कर रहा है और बोलता है कि ये सिक्के इसके हैं। नहीं शहजादे अमरू, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये सिक्के मेरे हैं। मैंने इसे घी के पैसे देने के लिए जैसे ही अपनी जेब से ये सिक्के निकाले तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा कि ये सिक्के मेरे हैं। ऐसा करो, ये सिक्के तुम लोग मेरे पास छोड़ जाओ और कल अपने फैसले के लिए यहाँ हाजिर हो जाना। मैं कल तुम्हें सोच कर बताऊंगा कि ये सिक्के तुम दोनों में से किसके हैं। शहजादे अमरू की ये बात सुनकर घी वाला और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं और लिखारी और चरवाहा लड़की को लेकर शहजादे अमरू के सामने हाजिर होते हैं। अब बताओ, आप लोगों का क्या मसला है? शहजादे, मैं एक लिखारी हूँ और ये लड़की मेरी गुलाम है। इसे मैंने अपने घर के कामों के लिए एक राहगीर से खरीदा था। नहीं शहजादे, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये लड़की मेरी गुलाम है। मैंने इसे एक राहगीर से खरीदा था ताकि मैं अपनी भेड़ बकरियां चराने में इस गुलाम लड़की से काम ले सकूं। क्या तुम दोनों के पास कोई गवाह है जो कि तुम में से किसी के लिए गवाही दे कि ये तुम में से ही किसी एक की गुलाम है? हाँ शहजादे, मेरी बीवी मेरे लिए गवाही दे सकती है। शहजादे, ऐसे तो मेरी बीवी भी मेरे लिए गवाही दे देगी कि ये लड़की मेरी गुलाम है। नहीं, तुम्हारी बीवियों की गवाही नहीं मानी जाएगी। किसी बाहर के बंदे की गवाही होनी चाहिए। तो फिर शहजादे, आप इस लड़की से ही पूछ लें। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लड़की एक गुलाम है, तो इसीलिए मैं इसकी गवाही भी नहीं ले सकता। ऐसा करो, तुम दोनों इस लड़की को मेरे पास छोड़ जाओ और कल आना। मैं कल ही तुम दोनों को बताऊंगा कि ये लड़की असल में किसकी गुलाम है। अब लिखारी और चरवाहा भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वजीर और बूढ़ा आदमी घोड़े को लिए शहजादे अमरू के सामने आते हैं, लेकिन शहजादा अमरू भी वजीर को नहीं पहचान पाता। अब बताओ, तुम दोनों का क्या मसला है? शहजादे अमरू, मैं एक व्यापारी हूँ। इस बूढ़े आदमी ने मुझे रास्ते में रोका और मुझसे कहा कि मुझे अपने घोड़े पर बाजार तक ले चलो। तो मैंने इस बूढ़े आदमी को अपने घोड़े पर बिठा लिया और बाजार की तरफ रवाना हो गया। और फिर जैसे ही हम बाजार पहुंचे तो ये बूढ़ा आदमी झूठ मूठ का नाटक करने लगा कि ये घोड़ा इसका है। नहीं शहजादे, ये घोड़ा मेरा है और मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, इसीलिए ये आदमी भरे बाजार में मुझसे मेरा ये घोड़ा छीनना चाहता था। ऐसा करो कि आप अपने इस घोड़े को आज मेरे पास छोड़ जाओ। आप दोनों कल आना, मैं कल ही आपका फैसला सुनाऊंगा। शहजादे की ये बात सुनकर वजीर और बूढ़ा आदमी घोड़े को वहां छोड़कर चले जाते हैं। अब अगले दिन सब शहजादे अमरू के सामने हाजिर होते हैं और शहजादा अमरू सबसे पहले घी वाले को अपना फैसला सुनाता है। सुनो घी वाले, तुम अपने सिक्के ले जाओ। मैं जान गया हूँ कि ये सिक्के तुम्हारे हैं। और सिपाहियों, इस आदमी को चोरी करने के जुर्म में 3 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दो। घी वाला अपने सिक्के लिए खुशी खुशी वहां से चला जाता है और सिपाही दूसरे आदमी को चोरी के जुर्म में काल कोठरी में डाल देते हैं। अब शहजादा लिखारी और चरवाहे का फैसला सुनाता है। सुनो लिखारी, मैं जान गया हूँ कि ये लड़की तुम्हारी गुलाम है, तो तुम इसे ले जाओ। और सिपाहियों,
इस चरवाहे को भी तुम काल कोठरी में डाल दो। लिखारी अपनी गुलाम लड़की को लेकर चला जाता है और सिपाही चरवाहे को भी काल कोठरी में डाल देते हैं। अब बारी आती है वजीर और बूढ़े आदमी के फैसले की। अब बताओ व्यापारी, तुमने ये घोड़ा कब और किस मकसद से खरीदा था? शहजादे अमरू, इस घोड़े को मेरे पास 3 साल हो गए हैं और ये घोड़ा मैंने अपनी सवारी के मकसद से खरीदा था ताकि मैं इस घोड़े पर सवार होकर अलग अलग बाजारों में व्यापार के लिए जा सकूं। अब तुम बताओ बूढ़े आदमी, तुमने ये घोड़ा किस मकसद से खरीदा था और ये कब से तुम्हारे पास है? शहजादे, ये घोड़ा मैंने 5 साल पहले एक किसान से खरीदा था। तब ये एक छोटा बच्चा था और इसे खरीदने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं इस पर बोझ लाद सकूं और कुछ पैसे कमा सकूं। तो ठीक है सिपाहियों, इस बूढ़े आदमी को धोखा देने के जुर्म में काल कोठरी में डाल दो और व्यापारी तुम अपने घोड़े को लेकर जा सकते हो। सिपाही बूढ़े आदमी को भी काल कोठरी में बंद कर देते हैं। शहजादे, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपको कैसे पता लगा कि ये घोड़ा मेरा है? हाँ, क्यों नहीं। असल में तुम्हारा घोड़ा जिस नस्ल का है वो सिर्फ सवारी के लिए ही लोग खरीदते हैं, ना कि बोझ उठाने के लिए। और तुम्हारे घोड़े को देखकर साफ पता चलता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ सवारी करने के लिए ही तैयार किया गया है। पर शहजादे, आपको ये कैसे पता चला कि वो सिक्के उस घी वाले के थे? असल में रात में मैंने उन सिक्कों को एक पानी के गिलास में डाल दिया था, जिसके कुछ देर के बाद मैंने देखा कि सिक्कों पर लगी हुई घी की चिकनाहट पानी में ऊपर आ गई है और मुझे इस बात से अंदाज़ा हो गया कि ये सिक्के घी वाले के ही हैं, क्योंकि अगर ये सिक्के उस घी वाले के नहीं होते तो इन पर घी की चिकनाहट भी ना होती। तो शहजादे, वो गुलाम लड़की के मालिक का आपको कैसे पता चला? यहाँ से जाने के बाद मैंने उस गुलाम लड़की को अपनी बेगम के हवाले कर दिया था और मैंने अपनी बेगम से कहा कि इसका काम करने का तरीका देखकर बताओ कि ये कैसे आदमी की गुलाम हो सकती है। तो उसके बाद आज सुबह ही मेरी बेगम ने मुझे बताया कि ये लड़की सफाई का बहुत ख्याल रखती है और हर काम बहुत सफाई से करती है। मेरी बेगम की ये बात सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लड़की उस लिखारी की ही गुलाम है, क्योंकि अगर ये उस चरवाहे की गुलाम होती तो ना ही ये सफाई रख पाती और ना ही कोई काम सफाई से कर पाती। वाह शहजादे अमरू, आप सच में बहुत समझदार और काबिल तारीफ हैं और आप अपनी जनता के साथ बहुत अच्छे से इंसाफ करते हैं। इस सब के बाद वजीर वापस राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बताता है, जिसके बाद राजा अपनी राजगद्दी शहजादे अमरू को सौंप देते हैं और बाद में जिस गरीब लड़के को शहजादे बमरू ने जेवर की चोरी के फैसले में कैद किया होता है, शहजादा अमरू उसे भी आज़ाद करवा लेता है और उसे उसका जेवर भी वापस लौटा देता है। इस तरह राजा को अपने राज तख्त सौंपने के लिए एक ईमानदार और समझदार राजा मिल जाता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।